ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਐਂਗਲਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਫ ਅ ਕਿਊਬ। ਕਿਊਬ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ 'ਚ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਗਲ ਡਾਇਗਨਲ 'ਚ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਗਲ ਤੇ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਿਊਬ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੈਟ ਅਸ ਯੂਜ਼ ਐਕਸਿਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਐਕਸ, ਇੱਥੇ ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦਾ ਐਂਗਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਓਰੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ 0 0 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸੇ ਐਕਸ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਿਆ a, ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ a, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ a 0 0, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ y ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ b, ਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0 a 0, z ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 0 0 a, ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ d, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ 'ਚ, ਸੋ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ a ਹੈ, y ਵੀ a ਹੈ ਤੇ z 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਐਕਸ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ a 0 a, ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੈ, f ਮੰਨ ਲਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 0 a a, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ 0 0 0, ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੈਟਸ g, ਦੈਟ ਇਜ਼ a a a, x ਵੀ a, y ਵੀ a ਤੇ z ਵੀ a, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲਸ। ਸੋ ਦੋ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਟਸ ਸੇ OG, ਠੀਕ ਹੈ, नो ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ FA। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਐਂਗਲ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲਓ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਆਫ ਲੈਟਸ ਸੇ OG, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ। ਤਾਂ a - 0 a - 0, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਗਏ a ਤੇ a, ठीक है। सिमिलरली डायरेक्शन रेशोज ऑफ लेट्स से FA, ठीक है, आ वाला। सो हाँ जी, कितना होगा a - 0 0 - a, सो दैट इज a - a ते -a, ठीक है। सो फिलहाल ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਲੈਟ ਥੀਟਾ ਵੀ ਦੀ ਐਂਗਲ, ਸੋ cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, a1 a2, ਸੋ दैट इज a into a square प्लस इनफैक्ट -a square, ठीक है। अगर क्योंकि a इंटू -a स्क्वायर एंड a इंटू -a स्क्वायर बाय, ठीक है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ अभी, हाँ जी, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, आ कटा जाऊगा। सो cos थीटा इज -a स्क्वायर बाय, हाँ जी, आ कितना आ गया थोड़े को 3a स्क्वायर, सो दैट इज -1/3। तो अगर क्योंकि दो एंगल होने, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज, राइट। तो अगर ते एक्यूट पूछे है तो इनू प्लस ले लो। सो अगर एक्यूट है तो पॉजिटिव वाली ले लो, थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 1/3, ठीक है। अगर ऑब्ट्यूज पूछे है तो दैट विल बी पाई माइनस cos इनवर्स 1/3। तो आ स्टैंडर्ड अगर एक्यूट याद रखना तो याद रख सकते हो, जिवें स्क्वायर च हुंदा ना कि एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इज ऑलवेज 90 डिग्री, एंड इत्थे आपां कह सकते हैं एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज ऑलवेज cos इनवर्स 1/3, ठीक है। तो हुण सैकेंड पार्ट ते चलते हैं पुत्तर। सैकेंड पार्ट की कहते हैं, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। तो पहली गल तो चार डायगोनल हो गए, दो तो आप ऑलरेडी बना ही लए सी, है ना, OG ते FA, तीजा CD, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ, हो गया तीजा डायगोनल, चौथा हो गया
B ਤੇ E ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਡਰਾ ਦ ਡਾਇਗਨਲਸ। ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਡਾਇਗਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਆ 2 ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ CD ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। CD ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ CD ਦੈਟ ਇਜ਼ DA - 0, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਨਾ, D ਤੇ C ਚੋਂ, ਤਾਂ x2 - x1, y2 - y1 ਐਂਡ z2 - z1। ਸੋ ਆ ਗਿਆ A, A ਐਂਡ -A ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਲੈ ਲਓ BE, चौथा डायगोनल, है ना। तो दैट इज A - 0 एंड 0 - A एंड A - 0। सो आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਐਨੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ, ਐਨੀ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ L ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ them ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਨ L ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਗਨਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ L ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਕੋਸਾਈਨ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਅਗਰ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਕੋਸਾਈਨ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ them ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਲਾਈਨ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਆਫ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਬੀ L, M ਐਂਡ N, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਨੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ A B C। ਕੋਸਾਈਨਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਕਿ ਲੈਟ ਦਿਸ ਬੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ, ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ L² + M² + N² ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ L ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਂਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ABC, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਆ 1 ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, A² + B² + C², ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ L ਹੈ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਆਰ ਵਟ L, M ਐਂਡ N। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਲਫਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਗਨਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਪਤਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼। ਬਸ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ A ਦਾ ਮੋਡ 1 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰਫੋਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਈਏ ਹੁਣ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਲਫਾ। ਸੋ cos ਅਲਫਾ ਇਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ, A1 A2 AL + B1 B2 AM, ठीक है, प्लस AN डिवाइड बाय √, हाँ जी, √A² + A² + A² and √L² + M² + N² and that we know is 1। तो इसे करके मैं कोसाइन लिया सी, कैलकुलेशन साड़ी थोड़ी जी घट जूगी। अब 1 आ गया तो कितना आ गया, A इथों कॉमन, L + M + N एंड A पॉजिटिव लिया तो कितना आ गया, √3A² that is nothing but √3A, और √3A कट जूगा तो that is L + M + N डिवाइड बाय √3, ठीक है। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ cos ਅਲਫਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ, ਬੀਟਾ। ਸੋ ਦੇਰਫੋਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, cos ਬੀਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ AL, ਹੈ ਨਾ। HC ਤਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਡਾਟ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਹੈ। तो इफेक्टिवली आ सारी कैलकुलेशन करके ए कट कटा के तो ए की आ जाऊगा थोड़े को L - M - N डिवाइड बाय √3 एंड सिमिलरली cos गामा, हाँ जी, वो इस लाइन का ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, which ++ L + M - N by √3 and cos डेल्टा, हाँ जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ, so that is L - M + N डिवाइड बाय √3, ठीक है। एंड वेयर you know that L² + M² + N² is equal to 1, ठीक है। ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, cos² ਅਲਫਾ + cos² ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਐਡਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ, देयरफॉर cos² ਅਲਫਾ + cos² ਬੀਟਾ, ठीक है,
cos square gamma plus cos square delta is equal to, हाँ जी, that is L plus M plus N, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਆਊਗਾ, √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ 3 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ L minus N square, ठीक है, I hope you are understanding what I am doing, and L minus M plus N the whole square divide by what 3, ठीक है। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਖੋਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ a plus b plus c square, a square l square plus m square plus n square है ना, plus 2 टाइम lm plus 2mn, ठीक है, ਇਹਦਾ ਸਕੁਐਰ ਖੋਲਤਾ, हाँ जी, प्लस हाँ जी l square plus m square plus n square plus, हाँ जी, l ਦਾ m ना माइनस आऊगा तो m ਦਾ n ना प्लस आऊगा, 2mn minus 2ln minus 2lm, ठीक है। ਹੁਣ आई होप a plus b plus c होल स्क्वायर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਐਰ ਖੋਲੀਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਬੀ ਵਾਟ l square plus m square plus n square, ठीक है, minus 2ln minus 2mn and plus 2lm, and last ਇਹਦਾ ਸਕੁਐਰ m square plus n square plus 2ln and minus 2lm minus 2mn divide by 3, 1 by 3, बस ਹੁਣ ਤੇ कैलकुलेशन है, हाँ जी, ਹੁਣ कट कटाई करो जो कटा जाता है, plus 2lm, ठीक है, minus 2lm plus 2mn and minus 2mn, ठीक है, plus 2ln minus plus 2mn and minus 2mn, ठीक है। और देखो minus 2ln plus 2ln, ठीक है, 2lm पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, सो l square plus l m square n square 1 आ भी 1, ठीक है, आ भी 1 आ भी 1, ठीक है, 4 और 3 नीचे है तो दैट इज इक्वल टू 4/3, आ थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है बेटे। तो इस तरीके ना कि कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ प्रॉब्लम होवे है ना, तो तुसी अपना चॉइस ऑफ एक्सेस करके वर्ड्स मार्क कर लो, ठीक है, तो जो पूछा गया कर लो, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, ਉਹਦੇ ਚ क्यूब ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੇ क्यूबॉइड ਦਿੱਤਾ है, क्यूबॉइड विद लेंथ ए बी सी, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਆ ਲੈਂਥ a ਹੈ ਤੇ ਆ a 0 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, y ਵੱਲ b ਹੈ ਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 b 0, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ z ਵੱਲ 0 0 c ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਫ ਅ क्यूबॉइड ਵਿਦ ਲੈਂਥ a b c, ਸੋ ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ डायग्राम है ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਟਿਸਿਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਲੈਂਥ ABC ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ डायगोनल ਦੇ डायरेक्शन ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ two lines whose direction cosines are given by these two relations, मतलब एलिमेंट 'ਚ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ l plus m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ -n, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ n is equal to this, तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, is equal to n square, ਰਾਈਟ। तो n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ l square plus m square is equal to, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ l plus m ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ, that is equal to l square plus m square plus 2lm, ठीक है। तो आ गया, तो therefore ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ को 2lm equal to 0, therefore lm equal to 0, ठीक है। सो मतलब either l is 0, ठीक है, और m is 0। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਉਹਦਾ l 0 ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦਾ m 0 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ l 0 ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ lmn ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਿ l ਇੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਨ ਥਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਕਿ l is 0 ਐਂਡ
लेट्स प्लग L0 देयर, आ गया m प्लस n इज 0, ठीक है। सो या m इज इक्वल टू माइनस n, तो इतों थोड़े को आ गया m बाय 1 इज इक्वल टू n बाय माइनस 1। और ज़्यादा होवे ना l इक्वल टू 0, अगर कला कोई एक 0 होवे तो तुसी इनू एवें लिखोगे। इनू मैं एक होर तरीके ना प्रूव करना, फिलहाल तो समझ लो, ठीक है। सो l बाय 0 इज इक्वल टू m बाय 1 इज इक्वल टू n बाय माइनस 1। थोड़े को इतने डायरेक्शन रेशो आ गया ना, अगर तुसी कहो कि लेट दैट बी इक्वल टू लैम्डा, सो l इज इक्वल टू 0 लैम्डा, राइट। m is equal to lambda and n is equal to minus lambda. So for different values of lambda ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, 0 1 ਐਂਡ -1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਫॉर द ਲਾਈਨ 1, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫॉर द सेकंड ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, सेकंड ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ m0 ਹੈ, ठीक है। सो फॉर द सेकंड लाइन m इज इक्वल टू 0, अगेन एन यूज करते हैं। सो m0 तो कितना आ गया l प्लस n इक्वल टू 0, सो l इज इक्वल टू माइनस n, सो देयरफॉर l बाय 1 इज इक्वल टू n बाय माइनस 1 इज इक्वल टू m बाय 0। सो ऑर्डर वाइज लिख ली ना, l m n, सो l बाय 1 m बाय 0 n बाय माइनस 1। सो ये डायरेक्शन रेशो आ गए 1 0 एंड -1, सो दूजी लाइन दे वन ऑफ द डी आर। सो जब दोनों के डायरेक्शन रेशो आ गए, सो ने एंगल पूछा सी है ना, फाइंड द एंगल। सो देयरफॉर cos थीटा इज हाँ जी a1 a2 दैट इज 0 एंड अगे भी 0 एंड प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ हाँ जी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर रूट 2 एंड इधर भी। सो देयरफॉर 1/2, देयरफॉर एक्यूट एंगल अगर पूछता है तो 60 डिग्री, obtuse पूछता है तो 180 चो माइनस कर दो 120 डिग्री, ठीक है। आई होप इन्ना क्लीयर ਤੁਹਾਨੂੰ एंगल ਕੱਢਣਾ ਆ ਗਿਆ है ना। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਕਿ फाइंड आउट दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बोथ द लाइंस, ठीक है, फिर किवें करना सी, फिर कुछ भी नहीं सी करना, तो ऑलरेडी तुसी आंसर ਕੱਢਿਆ है, बिकॉज लाइनां दे डायरेक्शन रेशो ਤੁਹਾਡੇ को आ गया। पहली लाइन दे डायरेक्शन रेशो कितने हैं, 0 1 एंड -1, ठीक है। कोसाइन लिए की करना, इनू ये यूनिट वेक्टर बना लो, मॉड ना डिवाइड कर दो, मॉड कितना आ गया 0 + 1 √2। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन लाइन दे आ जाने हैं लाइक 0/√2, ठीक है, एंड 1/√2 -1/√2, ठीक है। ऑलरेडी दस्या सी लाइन है बेटे बोथ वेज एक्सटेंडेड है, तो प्लस भी लईदा ते माइनस वाले भी लईदा, ते और -0/√2 दैट इज 0, तो पहला सारे आ प्लस प्लस के नाल, फिर इन्हू माइनस नाल मल्टीप्लाई कर दो, -1/√2, ਇਹਦਾ प्लस ਦਾ माइनस बन गया, ਇਹਦਾ माइनस ਦਾ प्लस बन जाएगा। सो दीज आर दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन 1, ठीक है। ਇਹਦੇ दूसरी लाइन ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। अच्छा, क्वेश्चन भी लगभग पहले वर्गा ही है, कहते फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज दो लाइना है ना, जिन्हों के डायरेक्शन कोसाइंस चार रिलेशन दिते। तो अगेन इन्होंने सैमल्टेनियसली सॉल्व कर ली है। तो की आ गया थोड़े को n इक्वल टू -l + m है ना। सो आ वाली वैल्यू इतने पुट कर दो। सो वी हैव 2l स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर स्क्वायर करो इहदा, m स्क्वायर + 2lm। सो आ गया थोड़े को l स्क्वायर + m स्क्वायर -2lm इक्वल टू 0। सो द सिंपल हो गया। सो l - m दा होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर आ नंबर 0 है, l - m इज 0, l इज इक्वल टू m। पर्पस की है अपना l m n दी रेशो करना, l ते m दी ते आ गई, ठीक है। तो हुण की करिए, आपां नूं l इज इक्वल टू m ਇਹਦੇ 'ਚ पुट करो, ठीक है, क्योंकि n ਦੇ ਨਾਲ भी रेशो चाहिए है ना। सो l इक्वल टू m ਇਹਦੇ 'ਚ पुट करते हैं। सो वी हैव 2m स्क्वायर + 2m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर है ना। सो 4m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, देयरफॉर स्क्वायर रूट ले लो +- 2m इज इक्वल टू +- n। तो अपन हुण l रेशो m आ गई, m रेशो n इत्थों आ जाना, तो m इज इक्वल टू +-n/2, 2 नीचे ले जाओ। हुण उन्हें क्या दो लाइन है, तो ये मतलब एक लाइन वास्ते m विल बी इक्वल टू n/2, ठीक है। दूजी लाइन वास्ते m इज इक्वल टू -n/2 या n/-2 कर लो। सो आ तो दोनों वास्ते ट्रू है ही है ना, फॉर बोथ द लाइन l/m इक्वल टू m/1।
सो इत्थों अगर दोनों नू रिलेशन नू वरतीए तो पहली लाइन दे इत्थे मैं लिख देना फॉर द लाइन 1 द डायरैक्शन रेशो विल बी, मैं इत्थे एम एनू इक्वेट कर रहा बेटे एम नू, तो आ हो गया एक लाइन वास्ते एंड एम एदी वैल्यू इत्थों इक्वेट करती n by -2, these are the for two lines we have the direction ratios। ठीक है, आई होप गल समझ आ गई। सो बस दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, तो पहली लाइन दे आ गया 1 1 2 एंड 1 1 एंड -2। तो हुण गल करदा सी पुत्तर वो एंगल बिटवीन द लाइन्स की, तो वो कढ़ लो cos थीटा इज़ a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है, दैट इज़ 4√6 एंड √6। सो cos थीटा इज इक्वल टू -2/6 -1/3, सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/3। ठीक है, एक्यूट है तो बिकॉज लाइन है दो, तो एक्यूट है तो cos इनवर्स 1/3 ले लो, ऑब्ट्यूज है तो आ वाला एंगल आ गया, राइट। अच्छा क्वेश्चन देखो कि कहता पुत्र कि L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines। तो ये अगर तुम देखो उन्हें दो गल्लां देतियां कि दो लाइना दे अलोंग आ दो वैक्टर है एंड क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन है तो दो यूनिट वैक्टर देते और यूनिट वैक्टर जेडे आपस की है पुत्र परपेंडिकुलर। तो एक असी ले लिए लेट्स ए कैप है ना विच इज़ नथिंग बट L1 M1 N1, ठीक है, तो दूजा आ बी कैप है ना, मतलब लाइन दे लॉन्ग आ दूजा यूनिट वैक्टर लेट्स से L2 M2 N2। सो दो यूनिट वैक्टर जो आपस परपेंडिकुलर है, एक लाइन दे लॉन्ग है दूजा दूजी लाइन दे लॉन्ग। हम चाहता कि शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ दीज लाइन्स। सो एक्चुअल च की है कि आ लाइन है पुत्र एक लाइन एक वैक्टर दे लॉन्ग, दूजी लाइन दूजे वैक्टर दे लॉन्ग। सो आपां नूं एक तीजी लाइन है L3 जी दोनों लाइनों के की है पुत्र परपेंडिकुलर, ਉਹਦੇ डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, मतलब ਉਹਦੇ अलोंग की चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक यूनिट वैक्टर चाहिए, सिंपल। तो ये तो पुत्र आसान है। हुण वैक्टर च तुहानूं पढ़ाया कि अगर कोई भी दो वैक्टर है लेट्स से ए ते बी, उन्हां दे परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर आपां एक वैक्टर चाहिए दैन दैट इज़ गिवन बाय ए क्रॉस बी, राइट। तो अगर ये पूरी लाइन एक्सटेंडेड तो एक पासे प्लस तो नीचे लेना हो तो माइनस ए क्रॉस बी। सो इनू चेते रखो पुत्र कि दो वैक्टर्स दे परपेंडिकुलर अगर कोई वैक्टर चाहिए उसकी डायरेक्शन साढ़े को क्रॉस प्रोडक्ट ना आ जाएगी, ठीक है। सो यूनिट वैक्टर तो बाद च आने, ठीक है, आप पहले एक वैक्टर काढ़ लिया यूनिट का मैं तुम्हें समझाना है। सो हम ए तो बी दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन दैट इज़ गिवन बाय ए क्रॉस बी, तो इनू वैक्टर ना कर लो। सो मैं इन्होंने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लैने, तो दैट इज़ आई जे के, ठीक है। पहला वैक्टर किहड़ा है L1 M1 ते N1, बी वैक्टर से पुत्र L2 M2 ते N2, राइट। सो की करिए इन्हों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो पुत्र, हाँ जी, आई आ गया देयरफॉर M1 N2 माइनस N1 M2 इंटू आई कैप, फिर माइनस जे दे नाल की आऊगा, हाँ जी, दिस जे गया, हाँ जी, L1 N2, अच्छा माइनस भी कंज्यूम करा दिया ना, तो ये हो गया थोड़े को N1 L2 माइनस L1 N2 एंड प्लस के कैप के दे नाल L1 M2 माइनस L2 M1। सो आ थोड़े को एक वैक्टर आ गया, हाँ जी, जिहड़ा किधर है पुत्र इन्हां दोनों के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन तो हो गई, हुण आपां सिर्फ की चैक करना कि यूनिट वैक्टर होवे। और अगर आप तुसीं देखो ना ये आ थोड़े को डायरेक्शन रेशियोज आ गए M1 N2 माइनस N1 M2, N1 L2 माइनस L1 N2 एंड L1 M2 माइनस L2 M1। सो इफ यू सी थोड़ा आंसर एग्जैक्टली वही पे है, बट आपां नूं श्योर करना है क्योंकि ये तो दो वैक्टर कोई भी दो यूनिट वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जरूरी नहीं यूनिट होवे ना, तो आपां नूं ये श्योर करना है कि ये यूनिट वैक्टर ही है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं छोटा ਜਿਹਾ एक कहा ਤੁਸੀਂ जनरल आप नाल प्रूव कर दो कि अगर कोई भी दो यूनिट वैक्टर लेने ए ते बी, उन्हों का क्रॉस प्रोडक्ट की आएगा मॉड ए इंटू मॉड बी
into sine of angle between them into n cap, where n cap is nothing but unit vector perpendicular to both, है ना। ਹੁਣ mod a 1 है, mod b 1 है क्योंकि यूनिट है, so therefore दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया sin थीटा इनटू n कैप। ना अगर दो यूनिट वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर हो तो इतने थीटा कितना हो गया 90, तो sin 90 कितना हो गया 1, तो आंसर किया गया इफेक्टिवली सिंपली n कैप विच इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। ਇਹਦਾ मतलब अगर दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है और उन्हां च एंगल 90 है तो फिर उन्हां दा क्रॉस सिंपली यूनिट वेक्टर ही दे देगा। ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ, ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ 90 ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 30 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ 30 ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਹਾਫ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ यूनिट वैक्टर नहीं है, दैट इज वन वैक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। ठीक है, ਇਹਦਾ ਮੋਡ 1 नहीं है, ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਹਾਫ ਹੈ। ठीक है, आई होप ਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਸੋ ਥੀਸ ਵਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼। ठीक है, टू शो दैट दे आर द डायरेक्शन कोसाइन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ नीचे प्रूव करता है कि अगर दो ਵੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਨਸਰ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ देयरफॉर ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਨਸਰ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ if L1 M1 N1 and L2 M2 N3 and this are the direction cosine of three mutually perpendicular lines, so ਤਿੰਨ mutually perpendicular lines ਹੈ ਹਨਾ, just like the coordinate axis, so ਇੱਕ ਦੇ direction cosine ਹੈ L1 M1 M1, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਤੇ ਆ ਤੀਜੀ ਵੱਲ। ਠੀਕ, and they are mutually perpendiculars। ओके, पहला जो लिखा है ना उन्होंने आप इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन पुट कर लिए, सो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन, देयरफॉर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर भी 1 है ना, सिमिलरली L2 स्क्वायर रिलेशन लिख लिए ये भी 1 है, तो L3 स्क्वायर N3 स्क्वायर ये भी 1 है राइट, इतने पहला रिलेशन हो गया। दूजा उन्हें क्या दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर आते डॉट प्रोडक्ट 0, सो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 है ना, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰਿਟੀ ਇਹਦੀ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड सिमिलरली 1 ਤੇ 3 वाला भी L1 L3 M1 M3 ਤੇ N1 N3 ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ 0 ਹੈ। ਸੋ ਆਤੇ ਜੋ ਗਿਵਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ whose direction cosines are proportional to this, direction cosines are proportional to this ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ these are the direction ratios। ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ direction ratios ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, L1 plus L2 plus L3 and M1 plus M2 plus M3 and N1 plus N2 plus N3। ठीक है, these are the direction ratios of a line which makes equal angle with them। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ L, ਆ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਸੱਚ ਦੈਟ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ L ਦਾ ਆ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਆ ਇਹਦੇ कैपिटल L दे, सो कितना होगा, हाँ जी A1 A2 इनू ये ना L1 इंटू एंगल कढ़ना है पुत्र L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस हाँ जी M1 नू ये ना। ठीक है, सो
m1 plus m2 plus m3 and then last n1 into n1 plus n2 plus n3 डिवाइड बाय, अच्छा डिवाइड बाय की होगा पहली लाइन आ गई हाँ जी l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर वो 1 आ जाएगा इनटू हाँ जी ਇਹਦਾ this square plus this square plus this square ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਪੀਟਲ A ਕੈਪੀਟਲ B ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ C, ਸੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। सो कितना आ गया पुत्र एंगल cos थीटा, हाँ जी l1 इंटू l1 स्क्वायर, पहली टर्म खत्म हो जानी है m1 स्क्वायर n1 स्क्वायर, सो l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर, ये पहली टर्म मल्टीप्लाई करके आ गया। फिर हाँ जी इनू दूजी ते तीजी ना करते हैं तो कितना आ गया l1 l2 प्लस l1 l3 प्लस एदी फिर m दियाँ बाकी दो टर्म्स उन्होंने मल्टीप्लाई करते हैं m1 m2 प्लस m1 m3 एंड n1 n2 प्लस n1 n3, ठीक है, डिवाइड बाय दिस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो ये हो गया थोड़ा एंगल बिटवीन द लाइन L एंड द फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो कितना आ गया आते आ गया 1, नाउ L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 ये 0 है, एदी L1 L3 प्लस m1 m3 प्लस n1 n3 ये भी 0 है, ठीक है। सो इफेक्टिवली ये किया गया cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय दिस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आ गया एंगल formed by this L with the first line, and similarly angle formed by this L with the second line ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, क्योंकि आ वाले टर्म 0 हो जानी है, इतने L2 स्क्वायर m2 स्क्वायर n2 स्क्वायर आएगा 1 आएगा डिनोमीनेटर च फिर आही आ जाएगा। तो सिमिलरली ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ L ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਵੀ cos ਥੀਟਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ this line L is making equal angle with these three lines, right। और इस रिजल्ट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਆਰ ਗਿਵਨ ਬਾय ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਕੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ x y एंड z है ना, ਐਵੇਂ ਲੈ ਲਓ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ x ਦੇ ਲੌਂਗ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ i ਕੈਪ, ਮਤਲਬ 1 0 0, y ਦੇ ਲੌਂਗ 0 1 0 एंड z ਦੇ ਲੌਂਗ 0 0 1। और एक लाइन जी इन्होंने तिना के नाल इक्वल एंगल बनाती है, तो देयरफॉर बाय दिस रिजल्ट तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन विच इज मेकिंग इक्वल एंगल विल बी हाँ जी की सीगे L1 प्लस L2 प्लस L3, सो L1 प्लस L2 प्लस L3, so that will be 1। Similarly M1 plus M2 plus M3 1 1 and 1, therefore direction ratios of a line which is making equal angle with these three will be this। और अगर डायरेक्शन को साइन करने हैं तो तुसी मॉड ना डिवाइड कर दो है ना, तो 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। वन ऑफ द डायरेक्शन को साइन बिकॉज जो बिल्कुल ऑपोजिट है माइनस के नाल आ जाएगा, ठीक है। सो रिमेंबर दैट रिजल्ट। अच्छा लास्ट क्वेश्चन कर दें पुत्र, एक लाइन है पुत्र वेरिएबल लाइन, तो कहता डायरेक्शन को साइन द वेरिएबल लाइन टू एडजेसेंट पॉइंट्स बी LMN एंड दिस। तो बेसिकली कहना चाहता कि लाइन ना थोड़ा जिहा एंगल घुमाया है ना, वेरी स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा, और एक पोजीशन च उहदे डायरेक्शन को साइन है LMN, तो दूजी च हो जाते हैं लाइक बिकॉज थोड़ा जिहा घुमाया तो वही एक्स वाला कंपोनेंट थोड़ा चेंज करता है L प्लस डेल्टा L एंड M प्लस डेल्टा M तो N प्लस डेल्टा N, ठीक है। सो की है कि एक लाइन है उन्होंने थोड़ा जिहा एंगल अगर किसी पॉइंट के अबाउट कहता घुमाया तो दैट एंगल इज़ वेरी स्मॉल डेल्टा थीटा, तो पहली लोकेशन के अंदर लाइन के जोड़े डायरेक्शन को साइंस है वो है LMN, दूजी जगह च अगे बना है, ठीक है। तो प्रूव करना है आ वाला रिलेशन। तो लेट अस बिगिन। पहला तो जो गिवन है उन्होंने इक्वेशन पुट करिए, क्योंकि डायरेक्शन को साइन है
LMN, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और आ दूजे भी डायरेक्शन को साइन ही गिवन है, देयरफॉर इन्हां दा सम ऑफ स्क्वायर भी 1 होगा, देयरफॉर L प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर M प्लस डेल्टा M होल स्क्वायर एंड N प्लस डेल्टा N होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1, राइट। तो तीजा रिलेशन की है कि इन्हां दोनों च एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, सो देयरफॉर कॉस ऑफ डेल्टा थीटा हाँ जी इज L इंटू L प्लस डेल्टा L एंड M इंटू M प्लस डेल्टा M, N इंटू N प्लस डेल्टा N डिवाइडेड बाय क्या होगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर N स्क्वायर वो 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड आ सम ऑफ स्क्वायर वो भी थोड़े को 1 आ जाएगा, ठीक है पुत्र। तो हुण आपां प्रूव करना है आ रिलेशन, सो लेट अस सी कॉस ऑफ डेल्टा थीटा हाँ जी इनू आ कितना आ गया, पहली टर्म नाल मल्टीप्लाई L इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1, तो आ थोड़े को आ गया L इंटू डेल्टा L प्लस M इंटू डेल्टा M, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है N इंटू डेल्टा N। नाउ आ L इंटू डेल्टा L लाइक ए आई गैस इत्थों तुसीं स्क्वायर अगर खोलीए तो वी कैन गेट दिस हाँ जी कितना आ गया L स्क्वायर प्लस डेल्टा L स्क्वायर प्लस 2L इंटू डेल्टा L है ना, कहते M स्क्वायर प्लस डेल्टा M स्क्वायर प्लस 2M इंटू डेल्टा M एंड लास्ट L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर सॉरी प्लस डेल्टा N स्क्वायर प्लस 2N इंटू डेल्टा N इक्वल टू 1। एच भी फिर तो बेटे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना है 1, राइट। तो अगे आ थोड़े को आ गया डेल्टा L स्क्वायर प्लस डेल्टा M स्क्वायर, दिस इज लाइक होल स्क्वायर डेल्टा N स्क्वायर हाँ जी आ वाली टर्म्स आ गई, तो होर किहड़ियां टर्म बच गई प्लस 2 आ वाली ना 2 कॉमन कर लो, सो वी हैव L डेल्टा L प्लस M मतलब कैलकुलेशन ही है N डेल्टा N इक्वल टू 1, ठीक है। हुण आ 1 थोड़े को कट्टिया गया और यदी वैल्यू यदी इत्थे प्लग इन कर लो, सो यदी वैल्यू कितनी आ गई, इनू उधर ले जाओ, ठीक है, टेक इट टू द अदर हैंड साइड एंड डिवाइड बाय 2, सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 1, this thing is equal to minus delta L square delta N square divide by 2, ठीक है। एंड मोर ओवर थोनू आंसर च भी कुछ इहो जिहा चाहिए, ठीक है। आई होप इन्ना क्लीयर है तुहानू पुत्र, तो इन्हू मैं रेज करदा हुण है ना, तो जिहड़ी चीज़ चाहिए है उहदे वल आपां आ जाइए, सो लेट अस इनू इधर ले आओ, सो देयरफॉर डेल्टा L स्क्वायर डेल्टा M स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस कॉस थीटा ट्वाइस आ गया। नाउ वी नीड आंसर इन टर्म्स ऑफ डेल्टा थीटा स्क्वायर, दिस इज डेल्टा थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होंदा पुत्र 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ दिस एंगल थीटा बाय 2 है ना। तो मेरे इसका लास्ट हम आंसर च आपको साइन थीटा नहीं चाहिए, बट आंसर सिर्फ डेल्टा थीटा चाहिए, एंड मोर ओवर उन्हें दिता है कि दिस एंगल इज़ वेरी स्मॉल एंड यू ऑलरेडी नो कि साइन ऑफ एनी एंगल ए इफ ए इज़ वेरी स्मॉल कैन बी टेकन एज ए, सो साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो बिकॉज डेल्टा थीटा इज़ वेरी स्मॉल सो देयरफॉर डेल्टा थीटा बाय 2 भी बड़ा छोटा है, so sin of delta theta by 2 can be taken as delta theta by 2 here, तो इत्थे आ गया 4 ऊपर दा स्क्वायर है, तो इनू एवें लिख लो इहदा स्क्वायर है, सो sin of delta theta by 2 is this, so delta theta by 2 ऊपर आ गया स्क्वायर, so 4 delta theta whole square by 4, so this is equal to delta theta the whole square, so जिहड़ी तुहाडी आ वाली एक्सप्रैशन है that is equal to delta theta square, वही आपां नूं प्रूव करना सी, ठीक है पुत्र। आई होप है ना क्लीयर है, तो नैक्सट लैक्चर च आप स्टार्ट करांगे जिहड़ा तुहाडा मेन पार्ट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
इन 3D। ठीक है, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਮੋਰ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।